our cabinet making expert, Mr. Ashok. So Ashok, among all the experts and trainers, you have been the experienced one, because you started the journey in furniture fitting trade in cabinet making in 2017. So आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई 2017 में, और अबू धाबी में हमने क्या सीखा, और what we are going to carry forward ahead. First, good morning, everyone. And thank you, Furniture Fitting Council and NSDC, for giving me an opportunity to made me follow my passion. Because ये जो carpentry और cabinet making जो है वो मेरे बचपन से ही, because my parents used to do the same work, like my father, my grandfather. So मैंने वो start से ही सीखा, और धीरे धीरे when I studied in Australia, same carpentry मैंने वहाँ पढ़ा, और फिर मैं यहाँ आके job भी जो carpentry का कर रहा हूँ. So it's always been my passion. So in 2017, when I was working in this company, Irresolute Design Company, which is based in Udaipur only, where I got to know about WellSkill and everything. I used to we used to do when I was studying in Australia, we used to do lots of like regional competition and everything, because हर कॉलेज दूसरे कॉलेज से जाके ऐसे कंपटीशन होते थे. बट we honestly we didn't know about WellSkill. बट परवेश जी और फर्नीचर फिटिंग काउंसिल के थ्रू हमने स्टार्ट किया. एंड I at that time वो हमारे पास जो कैंडिडेट आया वो ऑलरेडी सेलेक्टेड ही था, आनंद, जो जिसने कारपेंट्री में ITI किया, फिर इसने यहीं WellSkill के लिए पार्टिसिपेट किया. बट I wasn't aware for the selection and everything, but I honestly said that he is the genuine cabinet maker, क्योंकि अभी उसने after competition भी he is with me and he is leading our design department. So ये उसमें skill था ही. but 2017 में हमारे पास इतना time नहीं था कि हम पूरा उसके ऊपर, क्योंकि इसके लिए मशीनरी सब कुछ नया था. he was good into रीडिंग डिजाइन एंड एवरीथिंग, बट मशीनरी बहुत नया था इसके लिए. तो वो सब सीखना और ये सब करना, क्योंकि बाहर जो भी कंप्यूटर आते हैं दे आर वेरी स्किल्ड, लाइक दे स्टार्ट इन द एज ऑफ 14 और 15, एंड वो धीरे धीरे एज अप्रेंटिसशिप दे स्टार्ट देयर वर्क, एंड फिर वो क्या होता है उनको मोल्ड कर दिया जाता है जस्ट फॉर द परफेक्शन. एंड कैबिनेट मेकिंग, एज यू सेड, लाइक इट्स woodwork, like it's working in wood to create high quality furniture showing carpentry skills and aesthetic understanding. So इसमें सबका combination बहुत जरूरी है. And then at the second time when we got with the skill like selection and everything, we got Yuvraj, like Kesar Singh Rajput, sorry. So we got him, but again हमारे पास यही problem था कि he started cabinet making because he used to work here, and then he suddenly realized, oh, that's a great opportunity and everything. So but I will say, क्योंकि ये जो इतना variety of field, इतना बड़ा ये है कारपेंट्री का, कैबिनेट मेकिंग और जॉइनरी का, कि इसमें every day is a new learning. क्योंकि मैं भी आज पिछले 15-20 सालों से काम कर रहा हूँ, बट every day हमें कुछ न कुछ नया ही देखने को मिलता है कि ये जॉइंट कैसा होगा, या ये इस मशीन पे ये कैसा होगा. तो 1-1.5 साल में परफेक्शन लाना was hard, but ठीक है, हमने बहुत सारी लर्निंग ली 2017, 19. Now we have good people who are working for us, and थोड़ा सा जो मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा स्प्रेड करना जरूरी है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे अपन सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह है, तो उसमें हमारा यही है कि जो लोग जानते हैं, कुछ जो इंडस्ट्री जानती है, वहां ही कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट लाइक my hometown and the rural area I belong to, because वहाँ लोग मजबूरी में they start doing this trade and they are really good into it, but वहाँ से उन लोगों को कंपटीशन में लाना, उनको फाइट करवाना, वो भी जरूरी है. That's how I think we will get the good candidate, or it's a good learning. I think we are good to go now, I think. Yeah. So you studied in Australia, you did apprenticeship over there, you were a part of a vocational education system in Australia, and you have been associated with skill ecosystem in India also. So any
what are the major differences you see in both the countries? Because it can be a learning aspect for us to bring to do something in line with what Australia's vocational education system do. ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि कारपेंटर नॉर्मली साइट पे जाके कारपेंटर नहीं बन सकता कि हाँ ओके आई वांट टू डू कारपेंट्री एंड मैं करना चाहता हूँ. वहाँ यू हैव टू वर्क अंडर अ कारपेंटर फॉर 4 years just to get a certificate कि okay now you can be a carpenter, then you have to have 2 years experience, then you get a license to do a carpentry. So यहाँ वहाँ पे ट्रेड को बहुत है. जैसे what I studied is certificate 3 in carpentry, which is necessary to be a carpenter. So certificate 3 is a different thing. It's a necessity to get a carpentry license. So वहाँ जब ये certificate में कर रहा था तो it shows all the theoretical experience, then the practical experience. So it teaches you design, estimation and everything, like whatever that need to be a skill carpenter, like skillful trading. तो उसके लिए लेकिन यहाँ अभी जैसे यहाँ in our factory it's like 1200 people are working. So but ये है कि यहाँ कोई ट्रेड नहीं है. like some people know how to do, but फिर उनके पास डिजाइन का वो व्यू नहीं है, उनको एस्थेटिक नॉलेज नहीं है. सो ट्रेड्स आई थिंक यहाँ पे भी अगर थोड़े कॉलेजेस वगैरह जैसे BSDU कर रहा है कि जिसके अंदर आपको ट्रेड्स करा दिए जाते हैं, आपको थियोरेटिकल वो सिखा दिया जाता है एंड देन यू जॉइन योर ट्रेड. तो इससे आई थिंक ट्रेड को थोड़ा सा ट्रेड स्कूलिंग में करना जरूरी है, जैसे ITI वगैरह भी कर रहा है, बट स्टिल लाइक इसको थोड़ा सा और फैलाना जरूरी है. So, Ashok, you belongs to a woodworking background and you pursued your passion in woodworking. So, आपके हिसाब से what should be our steps as a government, partial government organization or representative of the government to make woodworking aspirational for the youth? Like actually, frankly speaking, बाहर तो ऐसा है कि if a carpenter earns $60 an hour, so it's always a pride job because लेकिन इंडिया में ये है कि हाँ ठीक है कारपेंटर है एंड इट्स जस्ट एवरेज सैलरी, तो उन लोगों को मोटिवेशन मिलता नहीं है. बट व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज व्हेन आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हियर आई नेवर न्यू दैट इट्स क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा इसका इंडस्ट्रीज या ऐसे है, बट आई जब मैं इनके साथ जुड़ा या फिर तो पता चला कि मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. लेकिन मतलब ये इसको थोड़ा सा ब्रॉड करना जरूरी है क्योंकि बहुत फ्यूचर है. मतलब एवरी डे वी हायर लाइक ऑलमोस्ट 10 और 15 पर्सन और हमें एवरीडे नीड है क्योंकि जो 2016 से 2029 का अगर इफ यू रीड द आर्टिकल की सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है एज ए ट्रेड इन कारपेंट्री, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबको घर चाहिए, सबको फर्नीचर चाहिए. तो इट्स लाइक बहुत डिमांड है लेकिन एक फ्लो में नहीं है. ठीक है, हर आदमी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है. एक तो सबको टाई होके एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि ओके दिस इज लाइक फर्नीचर फिटिंग काउंसिल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब for that, but still the industries need to get together to differentiate कि हाँ ये ट्रेड बहुत अच्छा है and there's lots of like opportunity. So wages. In Crux, we can say that industry needs to work on the wages which we give to our people. If individuals are getting good wages, good salary, then automatically the trades are going to become aspirational. हाँ, क्योंकि मैं खुद एक कारपेंटर, मैंने इस कंपनी में एज ए कारपेंटर ज्वाइन किया, बट फिर जब आप स्किल होते हो लाइक मेरे बढ़ने का रीजन यही था कि मैं स्किल था एंड आई न्यू ऑल ऑफ इट. सो तो फिर धीरे धीरे आई प्रोग्रेस्ड. सो दैट्स हाउ लाइक आपके पास अगर थोड़ा सा आपको काम आता है एंड देन यू आर स्किल्ड विद इट, लाइक आपके पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज है वगैरह है, तो आपको अच्छे से अच्छा मौका मिलता जाता है. एंड there's thousands of industries, like if I talk about a small home like उदयपुर, यहाँ पे भी कम से कम 10-15 फैक्ट्रीज है और ऑल टुगेदर 5000 पीपल आर वर्किंग इन. तो एक इतने से छोटे से एरिया में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज है, तो इट्स एवरीवेयर. एंड सैलरीज वगैरह सबकी अच्छी बढ़ ही रही है क्योंकि
अब वैसे भी स्किल जिसको जिसको काम आता है हाथ से उसके लिए हमेशा जॉब मतलब ओपन ही है।